Now the next topic is electromotive force. A device that maintains the potential difference between the 2 points in a circuit is said to develop an EMF, and that device is simply termed as a cell. यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया. इस सेल के अंदर there are two plates. One is made up of zinc, another is made up of copper. This copper plate is behaving as a positive terminal of the cell, and zinc plate is behaving as the negative terminal of the cell, while an electrolyte of dilute H2SO4 is filled between the gap. Now what is EMF? The maximum potential difference between the two plates of the cell on open circuit is called an EMF of the cell. It means this cell is open circuited because these two terminals are not attached with external circuit or wire. These two plates are connected through the electrolyte only. In this case, the cell is open circuit. Maximum potential difference develop across the electrodes of the cell while no current is being drawn from the cell is also known as the electromotive force. If we connect these two plates with any external circuit through a resistance, then what happens? An electron is attracted from the zinc plate. An electron attracted from this is zinc plate. This one is zinc plate and this one is copper plate. तो क्या होता है कि while we connect these two plates with a circuit, now the circuit is closed circuit, an electron attract towards the copper plate from the zinc plate. जिंक से कॉपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता है. नाउ दिस केमिकल विल पास एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक. नाउ दिस जिंक प्लेट acquire their electron. This process of movement of the electron go on till the chemical energy exists in the cell. Now electromotive force may also be defined in another term as it is also the energy supplied by the source in taking a unit positive charge once around the complete circuit is also known as electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि W/Q. कौन सा वर्क डन है? इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द सर्किट. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसे EMF इज इक्वल टू W/Q से रिप्रेजेंट करते हैं. इन SI सिस्टम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड इन वोल्ट्स. ओके. नाउ एक टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फिर क्या डिफरेंस हुआ? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को तो मैंने बोला है कि इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट. While the potential difference is the amount of work done in taking a charge from one point of a circuit to the another point. अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स may exist while the circuit is not closed. यानी ये ओपन सर्किट है तो भी यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा. जबकि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्लोज्ड सर्किट इज रिक्वायर्ड. मींस वी आर ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सेल. तो करंट कब ड्रॉ किया जाएगा? व्हाइल वी कनेक्ट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेल, तो तब करंट ड्रॉ किया जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिंगल एक ही लाइन में दोनों को अलग अलग सेपरेट करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द potential difference developed between the electrodes of a cell while no current is being drawn from the cell. While the potential difference is the potential difference across any 2 points of the circuit while the current is being drawn from the cell. यानी कि अगर इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो क्या होगा?
ईएमएफ, और इस क्लोज्ड सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में ही एग्जिस्ट करेगा, ये क्लोज्ड सर्किट है, जबकि ईएमएफ ओपन सर्किट में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ईएमएफ की डेफिनेशन है कि ईएमएफ कब एग्जिस्ट करेगा, व्हाइल नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ. If the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across any end of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. और ये जो लास्ट में लिखा है कि assuming that the temperature and the other physical conditions remains constant, तो at constant temperature and other conditions V proportional to I. अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो विल गेट V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ पर आर क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, आर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. अब इसी फार्मूले से अगर हम आई को डिफाइन करें और आर को डिफाइन करें तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, यानी वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और आई क्या है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज आई. तो आर जो होगा वो वी अपॉन आई के इक्वल होगा, और इस फार्मूले के अंदर आर क्या है, वो कांस्टेंट है. अब ये एक नई टर्म आ गई आर, जो आर है दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस, what do you mean by the resistance? Actually resistance is the property of a conductor which opposes the flow of charges through it. यानी by this relation R is equal to V upon I, यानी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उस कंडक्टर से चार्जेस के फ्लो होने का अपोज करते हैं, ठीक है. और इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ आर इज ओम, ओम, OHM, ओम, जिसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं. अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि सपोज 1 वोल्ट V is equal to 1 volt और I is equal to 1 ampere, then by the same relation R may be written as 1 volt upon 1 ampere. इसका मतलब क्या हुआ, if a potential difference of 1 volt, if a potential difference of 1 volt is applied across a conductor and current of 1 ampere is flowing through it, then the resistance of the conductor is said to be 1 वोल्ट पर एम्पियर या 1 ओम. इसे दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. मैंने ये कह दिया कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर किसी कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे तो हम उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ओम कहेंगे. बोथ द थिंग्स आर करेक्ट. अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, तो अगर हम फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड की बात करते हैं तो देयर आर फ्यू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड. नंबर 1, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगा, इसका मतलब ये हुआ. सेकेंड थिंग इज कि अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, इफ वी आर कंसीडरिंग दैट दिस इज अ वायर देन दिस मे बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, L बी द लेंथ ऑफ द वायर. तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एंड द थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ द कंडक्टर.
नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, यानी रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो लेंथ पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कंडक्टर की नेचर पर। कंडक्टर की नेचर का मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये कॉपर का बना हुआ है या आयरन का बना हुआ है या किसी अदर मेटल का बना हुआ है, इस बात पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब अगर इन फैक्टर्स को थोड़ा कंबाइन करें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल अपॉन ए। नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शन, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए। जहां पर एक नई टर्म आ गई रो, रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज द रेजिस्टिविटी और या तो इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब इसी में अगर हम ये कंसिडर कर लें कि अगर लेंथ ऑफ द वायर को 1 मीटर कंसिडर कर लें और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को भी 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लिया जाए, तो ये दोनों वैल्यूज अगर से पुट करते हैं तो विल गेट आर इज इक्वल टू रो इंटू 1/1, यानी आर इज इक्वल टू रो। तो इससे क्या हुआ, इससे हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ द मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर of that material having unit length and unit area of cross section, or it is the resistance offered by the unit cube of the material of the conductor। यानी resistivity of a conductor is equal to the resistance, लेकिन कब ऐसा होगा, while the length of the conductor is 1 and area of the cross section of the conductor is also 1, तब हम resistivity को किसके इक्वल रखेंगे, रेजिस्टेंस को के इक्वल रखेंगे। अब अगर हम इसकी एस आई यूनिट की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट को हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और शॉर्ट में ओम मीटर या ओम मीटर सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ टेकिंग a numerical, that is calculate the resistivity of a material of a wire of 10 meter long and 0.4 millimeter in the diameter and having a resistance of 2 ohm. So in this question given is length of the wire, this is 10 meters and 0.4 millimeter with the diameter. If diameter is 0.4, then we can calculate the radius is 0.4 divided by 2, it is 0.2 millimeters या 0.2 into 10 raised to the power minus 3 meters। मैंने से ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस इज गिवन, दिस इज 2 ohms। नाउ वी नो दैट फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बाय द रिलेशन R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या हो जाएगा, हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर ए अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, आर की वैल्यू है 2 ohm। एरिया, अब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर है तो सर्कुलर ही होगा, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 हम ले सकते हैं, एंड रेडियस इज दिस वन 0.2 इंटू 10 raised to the power minus 3 होल स्क्वायर divided by L. L is the length of the wire which is given 10 meters. Now after simplification we can get the answer and it is approximately 2.513 into 10 raised to the power minus 8 ohm meters। एक बार फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ द वायर 10 meter long, 0.4 millimeter in the diameter and having a resistance of 2.0 ohms। तो हमने क्या किया, इसमें जो लेंथ ऑफ द वायर दे रखी थी उसको लिख लिया, डायमीटर दिया था तो रेडियस ले लिया, 0.4/2 0.2 मिलीमीटर हो गया। इसको फिर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, 10 की पावर -3 मीटर,
रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का 2 ओम्स। अब हमने रेजिस्टेंस के फार्मूले से आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए वाले फार्मूले से रो को कैलकुलेट करा आर ए अपॉन एल, और इसमें सारी वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पर जो ए है वो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया होता है, एरिया कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर होगा तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 मैंने रख दी, और आर की वैल्यू रखी 0.2 इंटू 10⁻³ जो यहाँ पर कैलकुलेट करी थी का होल स्क्वायर, अपॉन अपॉन क्या था एल, एल की वैल्यू 10 पुट कर दी, और इसको कैलकुलेट करने के बाद 2.513 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.6 NCERT एक्सरसाइज। NCERT का 3.6 क्वेश्चन भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है। अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। Negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section is of 6.0 into 10⁻⁷ meter square and its resistance is measured to be, resistance का मतलब क्या हुआ, R दे रखा है 5.0 ohms। आप NCERT से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment, यानी रेजिस्टिविटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूं। अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये सीधा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एज वी नो that resistivity of the material rho is equal to RA upon L, R is equal to rho L upon A, rho is equal to RA upon L. Now we can put the values and can we calculate the answer. R is 5 multiply area is given 6.0 into 10⁻⁷ divided by length is 15। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 3 से 15, 3 से कट जाएगा 2.0, तो इट इज़ 2.0 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड द न्यू रेजिस्टेंस। यानी एक वायर की लेंथ अगर 10 ओम थी, वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी अगर एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था और उसकी लेंथ L थी, तो न्यू लेंथ L डैश जो है वो कितनी कर दी गई है, 3 टाइम्स। रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ से 3 टाइम्स अगर इसकी लेंथ को चेंज कर दिया गया हो, इसको हम 3L भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले वाले पार्ट पे आते हैं। पहला वाला पार्ट है रेजिस्टिविटी, यानी इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, इसलिए रेजिस्टिविटी पर कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर पर, कि कॉपर की वायर बनी है या एल्यूमिनियम की है, सिल्वर की है। तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि लेंथ पर। तो लेंथ के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। पहला पार्ट खत्म। अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस भी क्या इफेक्ट हो जाएगा। तो पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस देख लें, R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश। रो पे कोई चेंज नहीं है तो रो ही रहेगा, L की जगह क्या आ जाएगा, L डैश, और ए की जगह आ जाएगा A डैश। अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि एज द वायर इज स्ट्रेच थ्राइस, तो थ्राइस कर देने पर भी अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम V था तो फाइनल वॉल्यूम V डैश, यानी वॉल्यूम रिमेन सेम। वायर का जो मटेरियल है वो ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, वायर की सिर्फ लेंथ बढ़ी है, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी एल, और ये हो जाएगा A डैश L डैश। इसलिए जो A डैश A अपॉन A डैश की अगर मैं वैल्यू निकालूं A अपॉन A डैश, तो ये हो जाएगा L डैश अपॉन L।
या ए डैश अपॉन ए की वैल्यू निकालूँ तो एल अपॉन एल डैश, तो एल ही रहेगा और एल डैश हमारा कितना है, एल डैश है 3l के बराबर, तो ये आ गया 1/3, यानी एरिया की रेशियो मैंने निकाल ली 1/3 जो कि नहीं दी गई थी। अब डिवाइड इक्वेशन नंबर 2/1 आर डैश अपॉन आर, तो ये हो गया रो एल डैश अपॉन ए डैश इंटू रो एल अपॉन ए, रो से रो कैंसिल हो गया है ना, एल डैश की जगह रख सकता हूँ 3l और एल यहाँ ऑलरेडी है ही, एरिया ए को ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए है 1/3, तो इसे 1/3 ऊपर ले जाता हूँ, ए डैश नीचे है अपॉन ए, या ए अपॉन ए डैश 3/1 होगा ऐसे समझ लो, तो 3 हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9/1 यानी 9:1। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो 9:1 9 टाइम्स हो जाएगा। अब हमें आर की वैल्यू भी दे रखी है, तो आर डैश को हम निकाल सकते हैं 9r के इक्वल, यानी 9 × 10 = 90 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 90 ओम हो जाएगा।